A very happy afternoon to all. Happy afternoon. Yeah. Kept everybody on a mute mode so that we will have a smooth session. That is how we do it. And today's topic is elections in housing societies, which is a very hot topic because I get a lot of messages, lot of calls, lot of emails related to various queries based on this housing society elections. That is the topic on which I get maximum queries. This is CA Shilpa Shilkare. As you know, we are conducting these programs, all webinars or the sessions on various topics related to housing societies under my banner, that is We Indus Societies Welfare Association, that is WISWA. And these programs we are recording and the recorded programs or these recordings you can watch even after the program. It is getting uploaded on my channel, YouTube channel, that is Sahakar WISWA. WISWA is We Indus Societies Welfare Association. So I request everybody to kindly visit the channel and kindly subscribe to the channel also, so that the moment we upload the new video, you will come to know about it. You will get the notification and you can watch that video. And what happens is after the event is over, I get mails, again messages on the WhatsApp. I'm audible, right? Sanjeev, I'm audible? Yes, very much. Very nice. Clear. So even after the program gets over, then immediately I start getting messages from the members, from the chartered accountants also. Madam, kindly share PPT. Now kindly share the link, send us the recordings. So it's my humble submission, or it's my request to all the members or the participants who are joining for the session. See, we are doing this webinars because we thought, since anyway we are also sitting at home, we are doing our office work also. We are working from home for the professional matters. But whatever time I can manage, because as you know, there are no maids in the housing society. So even we have to manage, right? Domestic work, being the women practitioners. So I mean, it's my appeal to all the members that kindly be considerate, and you can call me, but maybe 2 to 4 is a time which is ideally, normally I'm comparatively free. So if you have any queries you want to ask, so call in that period. And it's not possible for me to respond to each and everybody's WhatsApp message. I don't look at it because I don't know how many WhatsApp groups we have across. Maybe 300, 400 plus. So it's not possible to attend each and everybody on the phone call or maybe on the WhatsApp. So I thought, let's conduct these webinars, let's conduct this cooperative clinic. So it's rather than addressing query of one member, I can address maybe 20, 25 or 50 members simultaneously. That is the whole purpose of this, and you people are joining this program. So thank you, thanks for that. But requesting you to kindly visit my video YouTube channel, because I have 40 plus YouTube videos as of now, and all small topics related to cooperative housing societies are, I mean, the videos are there, and I'm sure your query will be sorted out. You will get the answer if you visit the channel itself. So you need how to call me again, right? So that is the request from my end, and otherwise there is no issue for me to attend. Uh, right now we have with us, one sec, who are the people? One is CA Sanjeev Vora. Hi Sanjeev. Hi. Yeah, Good CA evening. Good Sanjeev. evening. Yeah. Good evening. As you everybody know, I'm a chartered accountant. I'm a regional council member also for the CA Institute. I'm a representative of the CAs for the Western India Regional Council, that is Gujarat, Goa, Maharashtra state. And under this committee, and I'm vice chairman of cooperative committee at Western region, and we have a cooperative study group for the chartered accountants. So we have CA Bora. He is our convener for that study group. So let me acknowledge the presence of other members also, and then Sanjeev, you can just take us through the CRC activities related to a study group, and then maybe I'll start with my session on election.
So let me acknowledge the presence of Advocate Shashikant Nagbedkar, CA Amit Sangoi from Andheri Oshiwara Study Circle, my convener again of uh, study group, Amruta Joshi. One sec, I'll mute you, Amruta. So Amruta Joshi is also convener along with Sanjeev Gora. Then we have CA Sanjay, CA Sujoy Mehta, CA Deven Prasad, Hemant Mirji sir, he is there in my forum. Manisha January, Madhukar sir has also joined. That is so, fantastic. Madhukar sir, I welcome you to the program, sir. Thanks for joining. Kindly unmute yourself for some time. Hi, how are you? Yeah, good, sir. Thanks for joining. You are having a brilliant experience and knowledge in cooperatives. I do see your post and replies to the members. So that is, I myself highly appreciate that. We have Nitin Rane also. We have Pradeep Kundar, CA, and I request all the chartered accountants, because whenever I see the participants list, I cannot see that CA prefix. See, whenever we are a chartered accountant, CA is something which is, that prefix is a pride for us. So we should be having our name, or you should rename yourself as CA, right? So I welcome CA Pradeep Kundar also. Kundar sir, a very happy afternoon. And then all other chartered accountants and society members. Yeah. So welcome all. And now it's over to, yep, Kundarji, hello. Okay, Sanjeev, over to you. Maybe you can take us through 5-6 minutes you take, and you just take us through the WRC Cooperative Study Group activities. We have Amruta also with us, and those chartered accountants who are there in this group, you can ask them also to join the group, those if they're from Mumbai. Yeah, over to you, Sanjeev. Let's start. Yeah. Thank you, Shilpa ma'am. Congrats for all your webinars that you have been arranging are really good. And we have friends, welcome to this webinar today also. And we have our study group on cooperatives. For 2 years we had continuously, and now we are in the third year, our study group on cooperatives, where we have all participants getting a chance to speak. We have group discussions, and we also have solving queries at the end, and we have all our senior members also in the profession who help us in, and Shilpa ma'am, who is herself into cooperatives very much, and she's a pioneer. So our queries also get solved, and most of the things are discussed, and now current topics also which are relevant to cooperatives. So kindly join the study group, and in this, and now our fees are also, fees is not a question, but then webinars we have, and we have knowledge sharing. And now this on 29th, we have Amruta Joshi is also my co-convener. She is going to speak on the topic of empanelment issues and all those. And we also make representations to cooperative department, our problems, our whatever empanelment issues and all those things, and those also get solved. There are various activities. We will be also coming out with publications for our members on cooperatives. And one of my friends who has become a member also of the study group, he was asking about audios also. So that also will be sharing, which will be very useful. So that is what I have to say now. So good evening, and have a happy session now. Yeah. Thank you. Thank you, Sanjeev. And basically, all those chartered accountants who are there present for today's webinar, if you have not enrolled for the cooperative study group, the meetings are conducted once in a month at BKC, and we get 3 CP hours, and fees are 750 rupees. So I think it 750 rupees for the year, right? So, and it is for the chartered accountant. So I think all should be joining this group, and we can discuss and debate on all burning issues which chartered accountant we are facing, or whatever. So that is what we want to say. Amruta, you would like to add anything? Amruta?
Okay, Amrita is there. Yeah, you want to say anything, Amrita? Okay. So with this, now I'll mute everyone. Yeah, Amrita. Yeah, as a convener along with Sanjeev, anything you would like to say regarding the study group, and then maybe I'll start. I am very happy along for study group as well as activities you are conducting in the lockdown period. Uh, various issues relating to cooperative housing society we are addressing through your association. So Yeah, it is very value addition for CAs also. yeah. So it's like I'm doing it, but I want all my CA practitioners also to take up CA practice, and that is the whole purpose of doing this, right? We have CA Amish Sangoi also. Amish, you are there? I think Amish is okay. Now I'll keep everybody on mute mode, and we'll discuss about the election process in cooperative housing society with respect to the amendments in the MCS Act and the provisions of bylaws related to that. And maybe last 15 minutes can have a question answer session. So those who want to ask question, they can raise hand. There is an option in your Zoom meeting toolbar. So you can press that option of raise hand, and then I'll unmute that person so that the flow of the event would be smooth, and there won't be any, I mean, much chaos as far as the question answer session is concerned, because then everybody will understand the question asked and the answer or the reply given. And I would request Madhukar sir also in between, if you can support, nothing like that. Yeah, you can give your views or opinion also on that. Should not be a problem. You're welcome. Yeah, so I'll just mute everybody. Yeah, and if I'm not audible, just kindly send me a chat. Okay. Yeah. So election, as you know, it's very hot topic in the cooperative housing society, very burning topic. And when we say a cooperative housing society, so we know that a lot of litigation is also there in the housing, though we are staying in a cooperative society. So the word of my, or the name of my housing society, it has the word cooperative, but a lot of non-cooperation we see among the members. There are issues within the members, between the members. There are issues between members and committee members, and so on and so forth. And a lot of litigation also happens, and unnecessarily we are wasting time. We are wasting our positive energy, which otherwise we can use for some positive or productive work. We are wasting money of our housing society, which is basically a common pool of all the members, funds which are being contributed by all the members. So it's our hard-earned money. So how much we should be spending on the litigation? So ये थोड़ा सा सोचने जैसा बात है. So now I'll start speaking in Hindi also, so सबको समझ में आएगा. तो हाउसिंग सोसाइटी का जो इलेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज होते हैं, लोगों को कितने कमेटी में मेंबर होने चाहिए, इलेक्शंस का पीरियड क्या है, कब वेकेट कर सकते हैं, हैंड ओवर करना है, किसी ने रेजिग्नेशन किया, कोरम क्या होता है. सो ऑल दिस थिंग्स विल ट्राई टू एक्सप्लोर थ्रू दिस सेशन. तो हाउसिंग सोसाइटी, और बिफोर वी स्टार्ट, एज एवरीबॉडी यू मस्ट बी नोइंग कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है कोऑपरेटिव्स, और रेरा प्रैक्टिस ये मेरा स्पेशलाइजेशन है. ठीक है, और इसीलिए मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज है. और जो हमारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, तो उसमें अमेंडमेंट लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन आया है. सो मैं वो कमिटी में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कमिटी एक फॉर्म की थी अमेंडमेंट, हाउसिंग रिलेटेड अमेंडमेंट्स लाने के लिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमिटी. तो सीए इंस्टीट्यूट को, डब्ल्यूआरसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है ये कमिटी में. और ये एक्ट में अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से भी है. कुछ 4-5 डेफिनेशन जो पहले एक्ट में नहीं थी, वो मैंने थोड़ा सा उसको इंसिस्ट किया, इम्प्रेस अपॉन किया, और वो डेफिनेशन अभी एक्ट में है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी.
शुरू करने से पहले थोड़ा सा जस्ट एक हाउसिंग के बारे में या जो लीगल फ्रेमवर्क है वो हमको जानना बहुत जरूरी है एज अ हाउसिंग सोसाइटी मेंबर। जब हम लोग किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग मेंबर हैं उस सोसाइटी के। मैं कमेटी को इसमें आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम लोग मेंबर तो हैं ही हाउसिंग सोसाइटी में कमेटी के। हम लोग मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स भी हैं शायद आप लोग, और जो सीएस हैं या अदरवाइज वो आई मीन दे आर ऑडिटर्स ऑल्सो। तो हम लोग तीन कैपेसिटीज में आज हम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, सो देर इन 3 कैपेसिटीज एज अ मेंबर, एज अ मैनेजिंग कमिटी मेंबर एंड एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो। कंसल्टेंट है जो सोसाइटीज को गाइड कर रहे हैं, एडवोकेट्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है, राइट। तो हमको थोड़ा सा ये हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में, थोड़ा सा बाईलॉज के बारे में, क्योंकि बाईलॉ अगर आप देखोगे तो बाईलॉ हमारा 70 पेजर बाईलॉ है, 77 पेजर बाईलॉ है, बट वो भी हम लोग रीड नहीं करते हैं और अननेसेसरी लिटिगेशन होता है। ईगो इश्यूज हम लोग काफी कैरी करते हैं, तो वो ईगो को हमको थोड़ा सा लेट गो करना है और लिटिगेशन में हमको ज्यादा जाना नहीं है। ये एज अ फर्स्ट, दो मैं खुद कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी लिटिगेशन हैंडल करती हूँ हाउसिंग सोसाइटीज का, बिकॉज लिटिगेशन ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग अपियर कर सकते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, यहाँ तक मैं इवन मैं खुद भी अपियर करती हूँ। तो वो एक क्लैरिफिकेशन है। तो ये लिटिगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना ही नहीं है, और इसीलिए थोड़ा सा हमको बेसिक अपना एक्ट क्या है, उसकी प्रोविजंस क्या है, रूल्स क्या है, बाईलॉज क्या है, और जो जीआरस नोटिफिकेशंस वगैरह इशू होते हैं उसका भी थोड़ा सा नॉलेज अगर हमको है। एक्सपर्ट नॉलेज नहीं हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हमको बेसिक नॉलेज है तो बहुत सारा लिटिगेशन हमारा कम हो सकता है। और हमारी सोसाइटी में अगर कोई मेंबर है जिसको बाईलॉज के बारे में मालूम है या जिसको थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है, उसका रीडिंग है, और अगर वो आपको कुछ सलाह देना चाहता है कि ये लिटिगेशन में मत जाओ या ये चीज को आगे मत बढ़ाओ, तो उसका भी थोड़ा सा अगर हम लोग सुन लेते हैं या उसको वो इंटरमीडियरी करके, मेडिएटर करके अगर वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का अगर प्रयत्न करता है, तो आई थिंक दैट इज अ वेलकम स्टेज। थोड़ा सबको ये बात पे भी सोचना चाहिए, ये मेरा एक अपील रहेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन टू कंडक्ट दिस वेबिनार इज कि हमको कम से कम लिटिगेशन करके ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना है सोसाइटीज में। और जो लिटिगेशन में पैसा, एनर्जी और डिपार्टमेंट का भी इसमें काफी टाइम जाता है, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आप देखोगे तो इतने सारे लिटिगेशन की इतनी हियरिंग्स चलती है, तो वो लोगों को जो ऑडिट है, कंप्लायंस है, सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, जिसके लिए वो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, रजिस्ट्रार, तो वो काम वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनका सारा टाइम ये लिटिगेशन अटेंड करने में ही जाता है। सो ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज ऑल्सो इट इज माई हम्बल सबमिशन कि हम सबको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए ये चीजों पे भी। अभी टू स्टार्ट विद, हम सब हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो आप सबको मालूम है कि हमारा एक जो दायरा है या जो एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें हमको फंक्शन करना है हाउसिंग सोसाइटी को, तो वो दायरा क्या होता है। ये सिर्फ बाईलॉज नहीं है जो मुझे मालूम होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं ना, लोग बोलते हैं कि ये बाईलॉज में लिखा है, ये जनरल बॉडी तो सुप्रीम है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये रिजोल्यूशन पास किया है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है, हर हाउसिंग सोसाइटी मेंबर को ये मालूम होना चाहिए। और इसीलिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्शन 24A महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है, वो कंपलसरी है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स and even for the employees, though there are some changes in the amended act, right? तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है मीन्स हर स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव लॉ है। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र में है तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है, उसके रूल्स 1961 के हैं, और फिर हमारा बाईलॉज है, राइट। तो इसी तरह हर स्टेट का, गुजरात है, आपका गोवा है, कर्नाटका, बिहार, दिल्ली, हर स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव एक्ट है। अभी मेरा कोऑपरेटिव एक्ट है, लेकिन इंडिया में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और आप सबने सुना होगा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2012 में शायद आप लोगों ने 7-8 साल पहले काफी सुना होगा। तो ये क्या है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मींस 2012 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, बिकॉज एज आई सेड कि कोऑपरेटिव्स ये हर स्टेट में कोऑपरेटिव्स एक्ट है। तो क्या होता था कि किसी स्टेट में इलेक्शन जो है, मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, हमारे यहाँ हम लोग मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, अगर बैंक है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो इसके जो इलेक्शंस होते थे, किसी स्टेट में 2 साल में हो रहे हैं, किसी स्टेट में 3 साल में हो रहे हैं, किसी स्टेट में 5 साल के बाद हो रहे हैं।
कहीं एजीएम का डेट कहीं किसी स्टेट में जुलाई का है, कहीं जून का है, कहीं अगस्त। अपने यहाँ 14 अगस्त तक हम लोग 14 अगस्त और फिर 3 महीने का एक्सटेंशन लेते थे। किसी स्टेट में वो सितंबर था। प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं था किसी स्टेट में, लाइक ऑनलाइन कंप्लायंसेस है कहीं नहीं थे। रिजर्व कैटेगरी का एक इशू था, लेना है नहीं लेना है। तो ये सारा जो आई मीन स्टेट वाइज एक्ट था, बट वो हम लोग बोलते हैं ना पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन। पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एक ऐसा स्टैंडर्ड फ्लो या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो सारे इंडिया में सिमिलर हो कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो इसीलिए 2012 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए गए, आर्टिकल 43 इंसर्ट किया गया और इसमें थोड़ा सा लाइक कोऑपरेटिव को एक फंडामेंटल राइट भी बताया गया कि जैसे फॉर्मिंग अ हाउसिंग सोसाइटी और फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट नाउ। तो जैसे अगर अपने को सोसाइटी भी फॉर्म करना है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस करे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव। तो जैसे अभी हम लोग बोले कि स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू इलेक्शंस होते थे हमारे, तो ये जो चेंज है ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। ये 2012 में पहली बार लाया गया कि elections to cooperative committees will happen to a separate प्राधिकरण। that means प्राधिकरण के थ्रू ही ये इलेक्शन होंगे। तो सेपरेट प्राधिकरण मीन स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। तो हर स्टेट का फिर एक स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बना, जो इवन हमारा भी है महाराष्ट्र में, जिसका ऑफिस पुणे में है। ठीक है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन दी हाउसिंग सोसाइटी। तो जैसे हमारे ऑनलाइन कंप्लायंसेस है 79 1A और 1B करके सेक्शन है, तो इसके कंप्लायंसेस रिटर्न ऑफ ऑडिटर, तो ये इंट्रोड्यूस किए गए। फिर रिजर्व कैटेगरी होना चाहिए हर कोऑपरेटिव में। हाउसिंग तो एक पार्ट है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिजर्व पोस्ट होनी चाहिए। SC ST है, OBC है, BJNT है। फिर विमेन की पोस्ट होनी चाहिए रिजर्व में। तो ये कहाँ बताया गया, ये जो मैंडेट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये 2012 में हमको बताया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। उसके बाद में एजीएम, जैसे ऑल ओवर इंडिया अभी आप देखोगे तो एजीएम 30 सितंबर को ही होती है। जैसे पहले अलग अलग डेट्स में होती थी, या जुलाई जून अगस्त सितंबर। तो अभी हर राज्य में, हर स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का एजीएम होती है, एजीएम का कट ऑफ डेट क्या है, ऑन और बिफोर 30 सितंबर, राइट। तो ये जो चीजें हैं या ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको बोला गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद में हर स्टेट को एक मैंडेट दिया गया कि जिस तरह अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुई हैं, तो अभी अब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हैं, ये 4-5 चीजें तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मेजर चेंजेस आए हैं, तो इसके हिसाब से अपने जो लोकल एक्ट है वो चेंज होने चाहिए। क्योंकि अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये चीज कर सकते हैं और मेरा अगर लोकल एक्ट बोलता है ये चीज नहीं हो सकती, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर है ना इंडिया में। तो सबसे ऊपर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आता है मेरा एक्ट। मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अगर हमको ये लीगल फ्रेमवर्क सबको अगर मालूम होगा तो इसमें से ही काफी लिटिगेशन रिलेटेड बहुत कम हो जाएगा। आपको समझेगा कि हम लोग कौन से दायरे में हैं, किस दायरे में मुझे फंक्शन करना है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस हुई हैं तो वो चेंजेस हमको लोकल हमारे एक्ट में लेके आना अनिवार्य था। तो हर स्टेट को 1 साल का मैंडेट दिया गया था। एंड अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र में अगस्त 2013 में हम लोगों ने अपना कोऑपरेटिव MCS एक्ट जो है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये हमारा अमेंडमेंट हुआ, जो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 6 महीने पहले, बिकॉज ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी 6 महीने का होता है, तो फरवरी 2013 से वो वैलिड है। ठीक है। उसके बाद में अभी जब एक्ट आता है तो एक्ट है और उसके बाद में रूल्स आते हैं। तो एक्ट और रूल्स में फर्क क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961 है। तो एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है, एक्ट में क्या बोला जाता है कि एक्ट में जो प्रोविजंस हैं कि ये करना है, ये होना है, तो ये सब एक टेक्निकल या एक मैंडेट होता है कि ये होना चाहिए, लेकिन उसको करना कैसे है। जैसे इलेक्शन लेना है, कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है, आपको अकाउंट्स करके लेने हैं, आपको ऑडिट करके लेना है, आपको 101 रिकवरी करनी है ओवरड्यूज का, बट ये करनी कैसे है, कौन से फॉर्म में इसको एप्लीकेशन करना है, किसको करना है एप्लीकेशन, कितने दिन में करना है, अगर वो उतने दिन में एप्लीकेशन नहीं किया तो क्या हम लोग कंडोनेशन कर सकते हैं,
तो इसका फीस कितना होगा, इस पे कुछ कोर्ट फीस आता है क्या, इसको अपीयर कौन कर सकता है, ये कितने दिन में ऑर्डर डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ला सकते हैं, अगर ऑर्डर आता है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है क्या। तो ये सारा जो है ये प्रोसीजरल पार्ट जो होता है वो रूल्स में आता है, राइट। बाईलॉज है तो बाईलॉज अगर अडॉप्ट करने हैं तो एक्ट बोलता है कि बाईलॉ अमेंड कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये करना है, बट प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर रूल्स में आता है, राइट। तो मेरा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो लीगल फ्रेमवर्क में पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर मेरा एक्ट है दैट इज महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एंड देन वी हैव रूल्स, राइट। रूल्स के बाद में आता है मेरा बाईलॉज। अभी बाईलॉज क्या है, बाईलॉ इज अ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हर सोसाइटी का जब हमारा हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होता है तो हमारा सबसे पहला बाईलॉ आता है। जब रजिस्ट्रेशन के टाइम ही हमारा रजिस्ट्रार से एक बाईलॉ रजिस्टर्ड होके सील होके आता है, जिसमें आप बाद में अमेंडमेंट कर सकते हो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी दैट इज रजिस्ट्रार। तो बाईलॉ प्रोविजंस भी हमको इक्वली एप्लीकेबल है। और उसके बाद में आता है जो वेरियस जीआर, जैसे कल एक इलेक्शन का जीआर है जो सारा व्हाट्सएप पे घूम रहा है, वायरल है, राइट। तो वो जीआर है, नोटिफिकेशंस हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सर्कुलर्स हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज के ऑर्डर्स हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स भी हमको इक्वली एप्लीकेबल हैं, ये भी ये दायरे में ही हमको फंक्शन करना है। जब हम लोग बोलते हैं कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% होना चाहिए, ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 से ज्यादा सोसाइटी नहीं ले सकती है, तो ये कहाँ बोला है, ये ना एक्ट में लिखा हुआ है, ना रूल्स में लिखा हुआ है, ना आपके बाईलॉज में। बाईलॉज में लिखा है कि ट्रांसफर प्रीमियम एज नोटिफाइड, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस एज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट। तो ये नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट मींस क्या, जो एक नोटिफिकेशन है, सो इसीलिए उसका सेपरेट नोटिफिकेशन है। 79A डायरेक्शंस जो है ये डायरेक्शंस हैं, ये रीडेवलपमेंट के डायरेक्शंस है। तो ये सब सोसाइटीज को भले ही ये डायरेक्शंस है बट ये मैंडेटरी है, इसका स्पिरिट क्या है, मैंडेटरी है। सो दैट मींस मेरा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, बाईलॉज, और मेरे जो सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, जीआरस जो है वो सारा ये सब मिला के इस तरह से ये सबके बीच में मुझे फंक्शन करना है, राइट। अभी हमारा जब ये पहला अमेंडमेंट हुआ 2013 में, when we say महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ये महाराष्ट्र स्टेट में है क्या, ये सिर्फ हाउसिंग का एक्ट है, नहीं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आपको मालूम है कितनी टाइप की सोसाइटीज हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 60+ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, 60 से ज्यादा सोसाइटीज हैं अलग अलग टाइप की। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पता संस्था जो है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर सोसाइटी है, डीमार्ट है, अपना बाजार है, ये कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, डेयरी है जैसे अमूल है, अमूल का जो ब्रांड हम लोग बोलते हैं ये भी कोऑपरेटिव ब्रांड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो उसी तरह हाउसिंग भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिशरीज है, लेबर सोसाइटीज हैं, फॉरेस्ट सोसाइटीज है, फेडरेशन है, फेडरेशन इज ऑल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। तो हर हाउसिंग का है उसका फेडरेशन है, बैंक है उसका फेडरेशन है, पता संस्था है उसका फेडरेशन है, फिर इनके एपेक्स फेडरेशन। तो ऐसे मिला के ऑलमोस्ट 60+ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज हैं जिसको ये एक्ट एप्लीकेबल है, राइट। अभी एक थॉट प्रोसेस ऐसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री लेवल पे था कि हाउसिंग में सबसे ज्यादा लिटिगेशन किसमें है, हाउसिंग सोसाइटीज में है। कौन सी टाइप की सोसाइटीज में, हाउसिंग में। ऐसे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स ने एक मिनिस्ट्री को भी रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है ये हाउसिंग का लिटिगेशन अटेंड करने में जा रहा है, और हाउसिंग में काफी लिटिगेशन है। और महाराष्ट्र में अगर मुझे आपको स्टैटिस्टिक्स देना है तो महाराष्ट्र में 2.5 लाख सोसाइटीज हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख सोसाइटीज जो ये हाउसिंग सोसाइटीज है, राइट। सो इतना बड़ा चंक जो है, मेजर चंक, आउट ऑफ दैट 60 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, 1 टाइप इज हाउसिंग, और आउट ऑफ ऑलमोस्ट 2.25 और 2.50 लाख सोसाइटीज, ऑलमोस्ट 1 लाख आर हाउसिंग सोसाइटीज, और उसमें भी 70 to 80,000 सोसाइटीज आर इन मुंबई, पुणे एंड ठाणे, राइट। तो ये हाउसिंग सोसाइटी में डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज का भी काफी टाइम जाता है। तो और जो एनजीओज है जैसे हमारा एसोसिएशन है या एमएसडब्ल्यू है, तो ये जो एसोसिएशंस हैं, ये जो एनजीओज हैं, ये भी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके इश्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी के मैटर्स में डिपार्टमेंट का, मेंबर्स का काफी इसमें टाइम जा रहा है। और जो प्रोविजंस एक्ट में है, जो 2013 में हमारा अमेंडमेंट हुआ, उसकी जो प्रोविजंस है ये तो सारे 60 टाइप्स की सोसाइटीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो
कि एक बैंक है जिसमें लाखों डिपॉजिटर्स हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें लाखों डिपॉजिटर्स हैं, उसके इलेक्शन के रूल, वहां इलेक्शन में बोला है कि 21 लोगों का मैक्सिमम कमेटी आ सकता है फॉर अ बैंक। तो क्या ये रूल हम लोग हाउसिंग सोसाइटी को अप्लाई कर सकते हैं? सेम रूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां 1 लाख मेंबर्स हैं। यहाँ हाउसिंग सोसाइटी में तो कभी कोई सोसाइटी मेरा 10 मेंबर का है, 15 मेंबर का है, 25 मेंबर का है, 100 मेंबर का है। तो इसमें से हम लोग ये जो मिनिमम बायलॉज में बोला है कि 11 मेंबर्स हमको चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजिंग कमिटी, अगर आप बायलॉ 113-14 देखो तो 11 मेंबर्स हम लोग कहाँ से लाएंगे? अगर मेरी हाउसिंग सोसाइटी जैसे बोरीवली वगैरह एरिया में देखो आप, बोरीवली, मलाड, ओल्ड सोसाइटीज है, ये छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, तो यहाँ हम लोग कहाँ से लाएंगे 11 लोग? सीनियर सिटीजन हैं, लोग बाहर रहते हैं, एनआरआईज हैं, फ्लैट इधर है, तो यहाँ फिर वो जो काफी चैलेंजिंग पोजीशन था। तो ये इलेक्शन वाज वन ऑफ द रीजन, एक मुद्दा था जो जिसपे थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो ये थॉट प्रोसेस डिपार्टमेंट लेवल पे चल रहा था कि हमको कायदे में एक हाउसिंग चैप्टर अलग सा करना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग का फंक्शनिंग जो है वो बाकी सोसाइटी की तरह नहीं हो सकता है। इसमें कोई फंडिंग नहीं होता है, जैसे अभी पत संस्था है या बैंक है या कोई शुगर फैक्ट्री है या स्पिनिंग मिल है, तो इसमें गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, ये एडेड सोसाइटीज होती हैं। तो उनके जो रूल्स हैं, उनके लिए जो सेक्शंस हैं, तो ये सेक्शंस हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। तो वो इसीलिए एक कमेटी गठित हुआ था फरवरी 2017 में, और उनका ये था कि ये कमेटी जो है, तो इसमें डेप्यूटी रजिस्ट्रार थे, डीडीआर थे, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार थे। ये कमेटी जो है संदीप देशमुख साहब एसआरए सेक्रेटरी, उन्होंने लीड या हेड किया था। तो ये कमेटी में सारे और प्रोफेशनल सीए, मैं थी, प्रभु साहब थे, अमित इसरानी सर थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम लोग थे, फेडरेशन वाले थे, मुंबई फेडरेशन वाले, थाना फेडरेशन वाले, राइट। तो ये सब ने हम लोगों ने मिलके हमको बोला गया कि आपको एक ड्राफ्ट बनाना है और हमको हाउसिंग के लिए अलग सा एक एक्ट बनाना है। जो तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने देखा कि ये पूरा अपना महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, इसमें कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हम लोगों ने निकाल दिए। कौन से प्रोविजंस हैं जो हाउसिंग के लिए होने चाहिए बट इसमें नहीं है, वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। और ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो जिसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की जरूरत है या मॉडिफाई करने की जरूरत है, वो हम लोगों ने मॉडिफाई किए। तो हम लोगों ने ये एक्ट लाया, हम लोगों ने इस पे 1.5 साल काम किया, वेरियस एमएलएस को प्रेजेंटेशन देके फाइनली ये एक्ट नोटिफाई हुआ। तो ये एक्ट नोटिफाई कब हुआ सबको मालूम है? ये हमारा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, जो हाउसिंग चैप्टर एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, चैप्टर 13B इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 154B जिसको अभी हम लोग बोलते हैं, और उसके अंडर सारे सेक्शंस हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका नोटिफिकेशन 23 जुलाई 2019 का है। दैट मींस लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट 1 साल अभी उसको होने को आया है। और इसका जो एप्लीकेबिलिटी है, दैट मींस ये एक्ट कब से एप्लीकेबल है, जो अमेंडमेंट हम लोगों ने किया, जो हाउसिंग रिलेटेड प्रोविजंस हम लोगों ने चेंज किए एक्ट में, इसका एप्लीकेबिलिटी 9 मार्च 2019। ये मैं डेट्स क्यों बता रही हूँ? आपको लगेगा मैडम अननेसेसरी चीजें बता रही है, डायरेक्टली इलेक्शन पे नहीं आ रही है। ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। ये डेट्स काफी क्रूशियल होती है जब आप लिटिगेशन मोड में होते हो, राइट। तो 9 मार्च 2019 ये हमारा एक्ट का डेट है। अभी जो एक्ट है उसमें अभी मेरा जो कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि आज का वेबिनार का टॉपिक हमारा इलेक्शन रिलेटेड है, तो मैं सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड चीजों पे ही फोकस करूंगी, बाकी चीजों में हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो नया अमेंडेड एक्ट है जो 9 मार्च 2019 से एप्लीकेबल है, जिसमें 154B जो है, ये हम लोग सेक्शन इसको बोलेंगे। तो इसमें 154B 19, 20, 21, 22 ये 4 सेक्शन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ द कमेटी क्या होगा, इसमें रिजर्व कैटेगरी का क्या पोजीशन रहेगा, ये सब इसमें बोला गया है। कैजुअल वैकेंसी रिलेटेड भी बोला गया है। लेकिन मैं आपको अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन शेयर मीन्स ये 154। हाय शाइना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, तो स्क्रीन में हम लोग ये अमेंडेड एक्ट जो है उसका वो पीडीएफ है, और जो रिलेटेड पॉइंट्स है वही हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है।
और ये जो अमेंडमेंट हुआ है स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड, बिकॉज दैट पीडीएफ नोटिफिकेशन स्टार्ट की 73 सीबी जो है वो अमेंड किया है, उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया है। तो टेक्निकल में ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो सेक्शन है हमारा 73 सीबी जो इलेक्शन के रिलेटेड है, जिसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया। प्रोवाइजो मींस एक्सेप्शन। तो एक एक्सेप्शन ऐड किया है कि 250 एंड लेस देन 250, तो जिस हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 250 मेंबर्स या लेस देन 250 मेंबर्स वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसके इलेक्शंस सोसाइटी इंटरनली कर सकती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि हर सोसाइटी का, हाउसिंग नहीं, हर सोसाइटी, दैट मीन्स बैंक हो, पता संस्था हो, जो कुछ भी हो, हर सोसाइटी का इलेक्शन स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी थ्रू होगा। तो इसको चेंज करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 में आया। ये अमेंडमेंट को भी वापस अमेंड हम लोगों ने लास्ट ईयर के जो नोटिफिकेशन आया है, जो अमेंडेड एक्ट आया है हाउसिंग रिलेटेड, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि छोटी सोसाइटीज जो हैं उनको ये स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी थ्रू तो जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें बहुत टाइम जा रहा था। जैसे हमको डिपार्टमेंट को भी लिखना पड़ता था, E2 फॉर्म सबमिट करो, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को E2 फॉर्म सबमिट करना पड़ता था, फिर स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी वो लिस्ट भेजेगी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को। फिर मिस्टर दवे, आई नो इट्स नॉट टॉपिक, आई एम कमिंग टू द टॉपिक, आई विल highly appreciate if you stop your chat, right? You don't teach me what is to be spoken or what is to be taught to you. Yeah, this highly disturbed, that is why I disabled the chat. Actually he doesn't understand what I'm trying to tell him. Yeah, so when the elections were happening through state cooperative election authority, a lot of time was getting consumed by of the housing societies. हम लोगों ने E2 फॉर्म सबमिट किया है, 8-8 महीना, एक साल हमको रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट नहीं होता था, क्योंकि जब स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी थ्रू आपको इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, दैट मींस स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के ऑफिस से आपके पास एक रिटर्निंग ऑफिसर आएगा जो आपके इलेक्शंस कंडक्ट करेगा, राइट? फिर वो आपकी 15-14 दिन का नोटिस देगा जनरल बॉडी का और इलेक्शंस होगा। तो इसमें काफी टाइम जा रहा था, एंड देयर इज नो मैन पावर एट दी registrar office, that means cooperative department. So there are two authorities, that is one is cooperative department and the other is state cooperative election authority. तो ये दोनों अलग अलग अथॉरिटीज हैं, बट फॉर इलेक्शन पर्पस उनको दोनों को मिलके काम करना है। तो मैन पावर वाज अ बिग चैलेंज, एंड दैट इज व्हाई एक थॉट प्रोसेस था कि ये जो इलेक्शंस हैं कि क्यों ना हम लोग ये 200 या 250 या 150 या 100 मेंबर की जो सोसाइटीज हैं इनकी इलेक्शंस हम लोग उनको इंटरनली कंडक्ट करने के लिए अलाउ कर दें, बिकॉज ऑटोनॉमी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव्स। स्वायत्तता, दैट मीन्स हर हाउसिंग सोसाइटी को या हर सोसाइटी को अपनी तरह से कामकाज करके करना देना है, ये कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन का। डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो उसी तरह ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो ये ऑटोनॉमी देने का एक प्रयास हम लोगों ने अमेंडमेंट में किया, राइट? तो हम लोगों ने क्या बोला कि 250 मेंबर तक जो सोसाइटीज हैं या उसके नीचे है ये इंटरनली इलेक्शंस कर सकती हैं, बट बिकॉज इस पे काफी हमको मैसेजेस आते हैं, बट इसमें लिखा है एक्ट में एज प्रिस्क्राइब्ड। तो मैं आपको अभी पीडीएफ बता दूंगी। तो एज प्रिस्क्राइब्ड, सो इलेक्शंस टू द कमिटी ऑफ society with 250 or less than 250 members will be done internally now as prescribed. Now ये जो वर्ड है ना प्रिस्क्राइब, तो ये प्रिस्क्राइब वर्ड का एक डेफिनेशन आता है एक्ट में। हर एक्ट में सेक्शन 2 आप देखोगे तो डेफिनेशंस आते हैं। तो प्रिस्क्राइब वर्ड को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, दैट मींस जो काम आपको करना है एज प्रिस्क्राइब, दैट मींस उसके रूल्स होने चाहिए। और आज के डेट में अभी आपको ये जीआर क्यों आ रहे हैं मालूम है? जैसे कल का जीआर आया इलेक्शन का कि इलेक्शन और 3 महीने के लिए पोस्टपोन हुए, क्योंकि ये रूल्स ही हमारे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हाउसिंग चैप्टर लास्ट ईयर हम लोगों ने लाया जुलाई में, इसको अभी 1 साल होगा, लेकिन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमेंडेड रूल्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं और इलेक्शन रूल्स भी अभी तक नहीं पब्लिश हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस, एंड दैट इज व्हाई द डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री दे आर कमिंग आउट विद
पोस्टपोनमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे पहले अक्टूबर में आया, फिर दिसंबर तक किया पोस्टपोन, फिर दिसंबर से फरवरी में किया, फिर फरवरी से मार्च में किया, फिर मार्च में अभी हम लोग कोविड सिचुएशन में हैं, फिर 17 जून तक था। फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपने अजीत पवार सर, उनका आपने शायद वीडियो देखा होगा, तो देयर वाज नो जीआर सपोर्टिंग दैट कि ये टिल फर्दर नोटिफिकेशन इलेक्शंस आर होल्ड। तो आई वाज थिंकिंग कि 17 जून तो आ गया, अभी आई डोंट नो वेदर नोटिफिकेशन विल कम, और कल जीआर भी आ गया कि अभी ये वापस 3 महीने के लिए पोस्टपोन किए गए हैं। और ये सारी ही सोसाइटीज के, नॉट ओनली हाउसिंग, फॉर ऑल दी 60 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज जहां भी कमेटी का टर्म 5 साल का है, बिकॉज 5 साल का कमेटी का टर्म, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो 5 साल का कमेटी का टर्म जो है, ये जहां जहां खत्म हुआ है वहां वहां इलेक्शन अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं होंगी, और जो एग्जिस्टिंग कमेटी है वो उसको कंटिन्यू करेगी एज इट इज। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड केयर टेकर, बिकॉज उसमें भी वापस क्वेश्चन आते हैं केयर टेकर, क्योंकि केयर टेकर ऐसा वर्ड कहीं एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। सो जो कमेटी जिसका टर्म 5 साल का खत्म हुआ है और आप इलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, तो अभी आपको और 3 महीने के लिए इलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल का जीआर है या वापस इसको पोस्टपोन कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको पीडीएफ देखेंगे। तो दैट मींस प्रिस्क्राइब मींस रूल्स, और वी आर अवेटिंग द इलेक्शन रूल्स, एंड वी आर आल्सो अवेटिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, जो एक्ट अमेंड होने के बाद में आते हैं। सी, ये हमारा आपको दिख रहा है सबको? यू आर एबल टू सी ना? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, या सो दिस इज दी नोटिफिकेशन जो आप देखोगे, तो ये 23 जुलाई, यहाँ देखो आप, महाराष्ट्र एक्ट नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट पब्लिश, उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट गैजेट ऑन 23 जुलाई 2019। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे, वेयर एज बोथ हाउसेस वगैरह वो जान दो, एयर एज इट इज रेसिडेंट, ये भी जान दो। इट शैल, एक या दो देखो, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो ये एक्ट कब से कमेंस है, कब से इसका एप्लीकेबिलिटी है? इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 9 मार्च, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका 9 मार्च का एप्लीकेबिलिटी है। नाउ ये बोलता है कि इन सेक्शन 73 सीपी ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो रिलेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिलेटेड है, तो इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया है जो अभी मैंने आपको बताया। तो आई एम ऑन सेकंड पॉइंट, provided further that in case of housing society having less than or up to 250 members, the elections of the committee shall be conducted by the said housing society in the manner as may be prescribed, and prescribed means prescribed by rules. And since we do not have the rules as of now, and we do not have the elections rules also as of now, as far as this 250 and less than 250 members concerned, and that is why none of the societies we are able to conduct the elections in Maharashtra, and that is why there is going to be a postponement. Earlier used to be a postponement, and now this is because of COVID, this further postponement has come. But maybe by next month we are expecting that they are working that rules would be notified, because I just spoke to the departmental officials also on this. So ये एक अमेंडमेंट है जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 250 and less than 250 members. Now word says that it shall be conducted in manner prescribed, that means internally। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने अलाउ किया है कि इंटरनली कंडक्ट कर सकती है सोसाइटी। तो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का इसमें कुछ नहीं रहेगा, उनको इन्वॉल्व नहीं करना होगा। बट जो रूल्स, बिकॉज ड्राफ्ट रूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ड्राफ्ट रूल्स एक्ट के भी बन चुके हैं और इलेक्शन के भी बन चुके हैं, ओनली थिंग इज वो पब्लिश नहीं हुए हैं।
तो ड्राफ्ट रूल्स में हम लोग चाहते हैं कि इंटरनली जब इसको हमको बनाना है, इंटरनली सोसाइटी ले सकती है, दैट मीन्स हमको सोसाइटी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देना है कि पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस से बंदा आता था, रजिस्ट्रार अपॉइंट करता था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर है, एक ऑर्डर आता था और इसके थ्रू ही आपको करके लेना है। वेरएज अभी चेंज क्या है, अभी हाउसिंग सोसाइटी को हम लोग एक फैसिलिटी दे रहे हैं या उनको एक चॉइस दे रहे हैं कि जो एक पैनल मेंटेन करेंगे इलेक्शन ऑफिसर का, एंड पैनल विल बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी दो, तो वो पैनल में से हाउसिंग सोसाइटी चूज कर सकती है किसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाना है। तो ये पैनल कौन लाएगा, कब लाएगा, ये इलेक्शन ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन इलेक्शन ऑफिसर बन सकता है, क्या हमारे कमेटी मेंबर्स बन सकते हैं या मेरे सोसाइटी का मेंबर भी इलेक्शन ऑफिसर बन सकता है क्या, तो ये सारा हम लोगों ने वो ड्राफ्ट रूल्स में मेंशन किया हुआ है, वो सिर्फ पब्लिश होना बाकी है। एंड सिंस इट इज नॉट पब्लिश, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज देयर इन दी draft rules, because though I know what is there in the draft rule, but as of date I can tell you that since the rules are not yet published, all the societies, they have to continue with the existing committee. And when I say they have to continue with the existing committee, in the sense आप जब committee में हो तो as long as you hand over the charge to the next committee, right, next managing committee, आपको सारे राइट्स और सारे ऑब्लिगेशंस आपके वैसे ही इंटैक्ट रहते हैं। Only thing is we advise that since your tenure of 5 years is already being completed, we advise the managing committee members you continue, but you don't take the crucial decision, जैसे आपका कन्वेंस का है या रीडेवलपमेंट का है, तो ये क्रूशियल डिसीजंस हैं या बड़ा कुछ पेंटिंग का वगैरह मेजर कॉन्ट्रैक्ट आप किसी को अलॉट करना चाहते हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो डोंट गो फॉर दैट, यू कैन सिंपली पोस्टपोन दैट एंड लेट द न्यू कमिटी कम इनटू पिक्चर। सो ये केयर टेकर कमिटी ऐसे वर्ड यूज नहीं करूंगी, बट मे बी एज लॉन्ग एज द नेक्स्ट कमिटी कम टू पिक्चर, यू आर टेक केयर ऑफ द कमिटी, सो यू कैन कॉल एज अ केयर टेकर कमिटी, but it is just to take care of the routine activities, right? Now we'll move to the section for B9020 और जो amendment है, तो जैसे से rules की है तो ज्यादा हम लोग इसमें बात नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने मेंबर्स की कंसेप्ट भी चेंज की है अमेंडेड एक्ट में। मेंबर्स में जैसे अभी हम लोगों ने एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन चेंज किया है, हम लोगों ने ज्वाइंट मेंबर का डेफिनेशन इंक्लूड किया है जो पहले नहीं था, प्रोविजनल मेंबर का एक नया कंसेप्ट हम लोगों ने स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है, एसोसिएट मेंबर कौन बन सकता है, तो जो बंदा है जो पहले कैसा था, जैसे आज के डेट में हमारा जो बायलॉ आप देखोगे तो एसोसिएट मेंबर कौन बन सकता है, द पर्सन हु इज हैविंग अ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, दैट मींस उसका उस प्रॉपर्टी में, because as I said cooperation इसके principles है, there are 7 principles of cooperations or cooperatives, so one of the principle is like economic participation. Economic participation means जब मैं बैंक में member बनती हूँ तो मुझे बैंक से लोन लेना है या बैंक में डिपॉजिट रखना है, this is the economic activity I have to do with the bank, right, to call myself as a member. So if I'm becoming a member of a housing society, what is the economic activity that I have to do? Is I should be buying a flat in that housing society, right? So पहले कैसा था, तो हमारा जो 2013 का एक्ट था उसमें एसोसिएट मेंबर के डेफिनेशन में हम लोगों ने ये लाया कि एसोसिएट मेंबर्स मींस ही शुड हैव अ स्टेक इन दैट प्रॉपर्टी, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, जिनको अपने वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी करना था, सो दैट वाइफ शुड अटेंड द मीटिंग और शी शुड बी एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और मे बी बेटे को करना है तो हम लोगों ने उनको गिफ्ट या रिलीज डीड या ऐसे ऑप्शंस देके उनके रिलेटिव्स को, जो है क्लोज रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को, उनको हम लोगों ने एसोसिएट मेंबर बनाया by I mean entrance fees, they have to pay the entrance fees, they have to fill up the associate members form and all going that. But अभी जो amendment हुआ है last year 2019 में, तो associate member अभी हम लोगों ने totally U-turn लिया है। तो जो पहले वाला 2013 वाला आपका कंसेप्ट है कि उसका प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए या उसका नाम एग्रीमेंट में होना चाहिए, वो अभी जरूरी नहीं है, तो ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन एसोसिएट मेंबर रिलेटेड इलेक्शन राइट्स हैं, so that is why I'm discussing. So now who can become the associate member? So if you see the definition of associate member, 18A आप देखिए, associate member means husband, wife, father, mother, brother, sister, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, nephew, niece, a person duly admitted to membership of a housing society on written recommendation of a member to exercise his rights and duties with his
prior consent and whose name does not stand in the share certificate. That means आज के डेट में associate member means कौन है कि कोई भी बंदा जो आपके ये जो definition relatives जो बोले हैं, जो define किए हैं, so you can ordinary member, that means जिसका share certificate पे first नाम है, वो बंदा रिटर्न रिकमेंडेशन, वर्ड क्या दिया है, ऑन अ रिटर्न रिकमेंडेशन, दैट मीन्स कोई अगर राइटिंग में सोसाइटी को लिख के देता है कि मेरी वाइफ या मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा बहू या मेरा दामाद ये एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, so that person can become an associate member and he has to get himself duly admitted to membership as an associate member. यह आपका डेफिनेशन बोलता है. अभी इस अगर आप हो तो एसोसिएट मेंबर को हम लोगों ने वोटिंग एंड कंटेस्टिंग राइट्स भी दिए हैं. दैट मीन्स वो एसोसिएट मेंबर जो सिर्फ रिटर्न रिकमेंडेशन के बेसिस पे एसोसिएट मेंबर बना है पोस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2019, that person can vote or he can attend the meeting provided the first member जिसने रिकमेंडेशन दिया वो मीटिंग में नहीं है, या सेकेंड अगर वो फर्स्ट मेंबर को अगर सपोज इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना है तो वो एनओसी देके 10A फॉर्म देके ये एसोसिएट मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. दैट मींस आज के डेट में एसोसिएट मेंबर हैज गॉट द एशियन आई मीन टू प्लेस द एशियन दिया हुआ है, राइट. I think it is then 11 154B11. See 154B11 154B11 2 आप देखिए, इसमें हम लोगों ने लिखा है the associate member shall have right to vote with prior consent of a member. That means written consent पहले वाले मेंबर का चाहिए कि ठीक है मैं नहीं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम जाओ, तुम एसोसिएट मेंबर में तुमको बना देता हूँ. So then that person can come. ठीक है. And then the provisional member भी दिया है, ये हो गया 50 हो गया 17. We'll come to 154B19, right? ये 3 ये हम कर रहे हैं, रिलेटेड है. Now 54B19 क्या बोलता है? Constitution of committee. Committee shall consist of such number of members as may be decided by the state government by notification or special order from time to time. That means committee में कितने लोग होने चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट. तो इसका नोटिफिकेशन आना जरूरी है. आज के डेट में हमारा अमेंडमेंट होने के बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. वी आर अवेटिंग, सो वी आर गोइंग एज पर दी बाईलॉज, राइट. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज व्हाट इट सेज. फिर कमिटी कब आता है? द कमिटी ऑफ द सोसाइटी शैल स्टैंड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. और मेंबर का टर्न अप शुरू होता है व्हेन फर्स्ट मीटिंग हैपेंस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और इसमें कितने लोग आने होते हैं? जैसे एक इशू हमारा जो एग्जिस्टिंग बायलॉ है, कोरम ऑफ द और स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज अनदर इशू और लिटिगेशन. 77A का जो ऑर्डर निकलता है जब ऑथराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है हाउसिंग सोसाइटी में, तो रजिस्ट्रार देखते हैं कि जैसे 77A में क्या लिखा है कि देयर इज अ वैक्यूम इन दी कमिटी. तो कमिटी में लोग कम है या सपोज लोगों ने रिजाइन कर दिया है, लोग छोड़ चुके हैं, किसी का डेथ हुआ है, तो इन दैट केस वेदर दैट कमिटी कैन फंक्शन, ये इतने प्रॉपर है क्या, 4 लोगों का कमिटी हो सकता है क्या, 6 लोग चल सकते हैं क्या. तो इस तरह की क्वेरीज आती है. तो उसमें लॉट ऑफ आई मीन ग्रे एरिया था कि हमारा जो बाईलॉ आप देखोगे 113, तो बाईलॉ क्या बोलता है? अप टू 100 मेंबर्स 11 का कमिटी होना चाहिए. उसमें 5 जो है ये रिजर्व कैटेगरी, तो 2 जो है वो लेडीज के लिए है, जो आगे भी 154B21 में लिखा है कि लेडीज के लिए 2 पोस्ट रहेंगी. तो 2 पोस्ट जो है ये विमेन के लिए है और 3 पोस्ट जो है ये रिजर्व कैटेगरी, दैट मींस SC ST OBC VJNT के लिए है. ठीक है. तो अगर किसी कमिटी में ये 5 कैटेगरीज नहीं है तो हमारा कमिटी कितने का आएगा? 6 का आएगा या हमको क्या करना है? तो ये इसमें दिया है. और पहले जैसे हम लोग देखते थे कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी या कोरम फॉर द मैनेजिंग कमिटी, तो वो बाईलॉ 130 में नीचे लिखा है कि कोरम वुड बी सिंपल मेजॉरिटी, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था. फिर ये किसी कमिटी में अगर 5 मेंबर्स नहीं है तो ये हमको स्ट्रेंथ निकालते वक्त 2/3 जब हम लोग निकालते हैं एलिजिबल मेंबर का स्ट्रेंथ फॉर द मैनेजिंग कमिटी, तो ये इसको 5 लोगों को पकड़ना है नहीं पकड़ना है, तो ये बहुत सारा ग्रे एरिया था. तो अभी 144B20 में वो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में
154B19 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए, कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए 2/3 मेंबर्स आपके होने चाहिए, 2/3 ऑफ दी स्ट्रेंथ विच इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो सपोज अगर स्टेट गवर्नमेंट का उन्होंने बोला है अप टू 100 मेंबर्स, 11 लोग हैं, तो 11 में से 2/3 मींस कम से कम 6 लोगों का कमिटी अपना आना चाहिए, 5 लोग आपके छोड़ के रिजर्व कैटेगरी के। अभी सपोज 154B20 में उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये जो 5 पोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्ट्रेंथ निकालते वक्त ये 5 पोस्ट माइनस करने हैं, इसका आपको विचार ही नहीं करना है। तो ये जो विमेन नहीं है या आपके पास SC ST OBC या VJNT का पोस्ट नहीं है, तो आपको ये पोस्ट जनरल कैटेगरी वाला फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोस्ट भर नहीं सकता है, आप उसको वेकेंट रखना है। और स्ट्रेंथ अराइव करते वक्त आपको 2/3 जो लाना है, और ये मेरा भी इंटरप्रिटेशन है, सो ये 2/3 का जो आपको क्राइटेरिया अप्लाई करना है या ये इस पे करना है आफ्टर माइनसिंग दैट रिजर्व कैटेगरी पोस्ट। सो विल रीड दिस 154B19 and 20. 154B19 says committee shall consist of such members as notified by the state government. The committee of the society shall stand constituted on the date of declaration of result of election to the committee by returning officer, where more than 2/3 of the committee members of the strength as may be decided by the registrar from time to time have been elected. That means 2/3 is the criteria for declaration of the result or constitution of the committee, provided that in case 2/3 is a fraction, that means 2/3 आपका suppose 3.5 3.6 आ रहा है, तो it shall be rounded off to next higher number, जो normally हम लोग मैथ्स में फॉलो करते हैं, वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। The term of the office of the elected members of the committee and its office bearer shall be 5 years from the date of first meeting of newly constituted committee, and the term of the office bearer shall be coterminous। ठीक है, अभी ये जो 19(4) है 154B19(4), ये काफी इंपॉर्टेंट है। Any casual vacancy in the committee, just listen to me carefully. 154B19 ये जो amended act है मेरा, इसमें 119B19(4) बोलता है any casual vacancy in the committee may be filled by co-option and term of the co-opted member shall be coterminous with the term of the committee. That means अगर मेरे committee में कुछ casual vacancy है, तो कैजुअल वैकेंसी मींस क्या हो सकता है, किसी का रेजिग्नेशन है, किसी का डेथ हुआ है, राइट। सो इन दैट केस द कैजुअल वैकेंसीज कैन बी फिल्ड अप बाय कोऑप्शन। तो ये कोऑप्शन कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, ये इलेक्शन रूल्स में प्रोसेस दिया गया है। सो मैनेजिंग कमिटी हैज द राइट टू co-opt the members but provided as per the rules prescribed. So election to committee rules जो है हमारे 2014 में election to committee rules भी prescribe किए गए थे, which are still available, which are still applicable to societies above 250 and other cooperative societies, right? So उसका जो procedure है वही procedure अभी अपना जो नया rules है उसमें भी आएंगे। So casual vacancy can be filled up. Then 150B20 क्या बोलता है, reservation of certain seats on committees of societies and election thereto. तो ये 154B20 में बोला है कि जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला एक मेंबर होगा, 154B20A बोलता है। बी बोलता है 1 मेंबर बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास मींस OBC, और सी बोलता है मेंबर बिलोंगिंग टू VJNT, दैट इज विमुक्त जाति एंड नोमैडिक ट्राइब्स, राइट। सो ये हम सबको मालूम है, ये अभी भी हमारे प्रोविजंस में है। 154B20 है एनी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी और एनी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमिटी or any member of the committee of the member society, whether elected, co-opted or appointed under this section, belonging to scheduled caste, scheduled tribes, backward class or special backward class, shall be eligible to contest the election to a reserved seat, and every person who is entitled to vote shall be entitled to vote at the election. ये भी ठीक है, कुछ नहीं है, जनरल और स्पेशल का भी कुछ नहीं है। Okay, we will go to 154B21. ठीक है, 154B reservation for women. Reservation for women, as I said, there should be 2 women on the committee. So notwithstanding anything contained in this act, what it says, any individual woman, that means 2 women it has to have, that it says any individual woman member of the society or any women member of the committee, whether elected, co-opted, nominated, shall be eligible to contest the election. And अगर सिर्फ women member वाली society तो उसको ये applicable नहीं होगा, that is what it says. Then 154 general provisions, हाँ ये देखो 154B22 till the time the members of reserve categories, ये this is very important because इस पे काफी
मैसेजेस भी हमको आते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए. 154B22 says till the time the members of reserve categories are not available, till the time members of reserve categories are not available or elected to fill the reserve seats as provided in section 154B20 and 154B21. Such reserve seats shall not be counted for strength of managing committee for composition of quorum for conducting its meetings. That means ये जो पॉइंट था ये हमारे बाइलॉज में या पहले वाले एक्ट में ये क्लियर नहीं था कि अगर रिजर्व कैटेगरी मेरे पास नहीं है किसी हाउसिंग सोसाइटी में तो ये 5 लोगों को भी हमको पकड़ के 2/3 निकालना है या 5 लोगों को माइनस करके 2/3 निकालना है. So 154B22 now it's clear that you have to reduce if you don't have this 5 posts. There is it says such reserve seats shall not be counted for strength, and that is why now your strength for the committee and strength for the managing committee and strength for the committee stands to be 2/3 of the total strength whatever is notified minus this 5 post if you don't have it, right? Now 154B23 again is a very interesting this thing, disqualification of committee. अभी इलेक्शन को खड़ा रहना है आपको, तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सा बंदा आपके हाउसिंग सोसाइटी में वो कौन सा मेंबर है जो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, राइट? तो इसमें सबको मालूम है कि ही शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर. तो हमको मालूम है ये एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर वाला कंसेप्ट था, वो भी हम लोगों ने इसमें से निकाल दिया है हाउसिंग चैप्टर से अभी. तो अभी वो एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर का कंसेप्ट नहीं है. जैसे 5 साल में एक बार तो आपको जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करना था, अगर नहीं किया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव है तो वो नहीं बन पाएगा. तो वो हम लोगों ने निकाल दिया है. अभी हम लोगों ने ये 4 या 5 क्लॉजेस डिफाइन किए हैं कि कौन है जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड है. तो फर्स्ट क्या है, देखो मैं ये सेक्शन रीड करती हूँ. विदाउट प्रेजुडिस टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर in relation to the disqualification of being a member of the committee, no person shall be eligible to be appointed, nominated, elected, co-opted. Means सिर्फ election नहीं, nomination, co-option, अगर कुछ भी है तो किस बंदे का nomination या co-option या election के लिए वो खड़ा नहीं रख सकता है. पहला, if he is a defaulter of any society. That means आप अगर किसी सोसाइटी के, not only your society, it is any other society also, if you are defaulter. So defaulter का definition act में नहीं था, ये मेरा submission था कि defaulter is nowhere defined. So we have defined defaulter. 154B2 section जो है हमारा ये definition का है. ड्यूज का definition नहीं था, तो 101 के जो recovery के applications हम लोग करते थे तो ड्यूज का भी वो बहुत इशू होता था कि ड्यूज में पेंटिंग फंड आता है क्या, रिजर्व फंड आता है क्या, रिपेयर्स फंड लेना है नहीं लेना है. तो ड्यूज को भी हम लोगों ने डिफाइन किया. HUF का डेफिनेशन 1960 का मेरा एक्ट है और जो पर्सन का डेफिनेशन है उसमें पर्सन के डेफिनेशन में सब है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कंपनी है. HUF नहीं था तो मैंने ये उनको नोटिस में लाके दिया कि सर 1960 से हमारा एक्ट है लेकिन एक्ट में HUF नहीं है पर्सन के डेफिनेशन में, लेकिन हर फ्लैट होता है तो हम लोगों ने HUF इंक्लूड किया. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है ये मुझे उनको समझाने में काफी टाइम गया, 2 मीटिंग्स हमारी गई. सो आई सेड कि इट्स अ न्यू कांसेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो जैसे कंपनी को हम लोग शेयर मेंबर बनाते हैं, शेयर होल्डर बनाते हैं, तो हमको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी बनाना पड़ेगा आज के बाद. तो हम लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी पर्सन के डेफिनेशन में किया है. तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है ये कमेटी के लिए, ठीक है. तो अभी हम लोग 154B23 में है. सो जो बंदा डिफॉल्टर है, दैट मीन्स अगर किसी ने सोसाइटी के ड्यूज पेंडिंग रखे हैं, तो ड्यूज पेंडिंग रखे हैं दैट मीन्स जो सोसाइटी ने डिमांड किया है उसके बाद में 3 महीने में अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो आप डिफॉल्टर हो और सोसाइटी को आपको नोटिस देना है. तो सोसाइटी ने आपको 3 नोटिस दिया और 3 नोटिस देने के बाद में भी आपने ये ड्यूज भरे नहीं है तो आप डिफॉल्टर होते हैं and you will not be able to contest the election. So first condition is आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए आपको. तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास मेंबर्स आते हैं उनके इश्यूज लेके कि ये मेरा आउटस्टैंडिंग है, अभी मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना था लेकिन ये लोगों ने देखो मेरे पे 101 का कार्रवाई किया. तो ये होता है, ये ईगो इश्यूज हैं, थोड़ा सा वो हाउसिंग सोसाइटी में चलता है. तो अगर किसी को डिस्करेज करना है कि ये बंदा इलेक्शन कंटेस्ट ना करे
तो चलो अभी इस पे 101 का कार्रवाई करें, तो पहले आपको ये देखना है कि आप डिफॉल्टर हो या नहीं हो, आपको नोटिसेस दिए हैं या नहीं दिए हाउसिंग सोसाइटी ने, राइट। सो और आपको ये भी है कि अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है और कमिटी में आना है तो आप यू कीप ऑन पेइंग द मेंटेनेंस मे बी अंडर प्रोटेस्ट। सो हर चेक आप इशू करो, लेकिन वो इशू करते वक्त लिखो कि आई एम पेइंग इट अंडर प्रोटेस्ट, राइट, but you don't default on your payment. So first condition is you should not be a defaulter. Second condition is this is very going to be a litigating area going ahead, and I was against this amendment actually. तो ये है कि if he carries on business of letting, subletting and selling of flats in the housing society of which he is a member, that means आपके हाउसिंग सोसाइटी में अगर कोई मेंबर ऐसा है जो स्टेट एजेंट है या ब्रोकर है, जो हाउस प्रॉपर्टी बेचता है, जो घर लाइक फ्लैट सबलेट करता है या सेलिंग का बिजनेस करता है और कमीशन अर्न करता है, तो वो मेंबर कमिटी मेंबर नहीं बन सकता है। बट ये सिर्फ आपके हाउसिंग सोसाइटी के लिए वो नहीं बन सकता है इफ ही कैरीज ऑन बिजनेस इन दी हाउसिंग सोसाइटी ऑफ विच ही इज अ मेंबर, राइट। तो ये जो है ये डिपार्टमेंट वाले जो डीडीआर थे, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार थे, तो मैंने उनको बोला कि सर एक्चुअली ये प्रोविजन हम लोगों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 और 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज आई कैन डू एनी एक्टिविटीज, मेरा ये राइट है टू गो फॉर एनी प्रोफेशनल और बिजनेस एक्टिविटी आई कैन कंडक्ट इन इंडिया, नोबडी कैन क्वेश्चन मी, राइट, इट्स माय फंडामेंटल राइट. So I said this can be challenged, but they said ये सबसे ज्यादा लिटिगेशन का मुद्दा है मॅडम, आमच्याकडे जास्त कंप्लेंट ह्याच्याच येतात की आमच्या कमिटी मध्ये चेअरमन आहे, सेक्रेटरी आहे, ट्रेजरर है, आणि तो इस्टेट एजेंट है, वो ब्रोकर है मैडम, वो बेचता है सर, वो उसको मालूम होता है कौन सा फ्लैट अभी खाली होने वाला है, तो वो फ्लैट बेचता है, उस पर कमीशन अर्न करता है, तो ये इंटरेस्टेड पार्टी हो गया, बट वो कमिटी में है, right, and that is why this point number 2 is being introduced. Now point number 3 is it has if he has been held responsible under, that means आपके अगेंस्ट कोई सेक्शन 79, 88 का कार्रवाई जो हम लोग बोलते हैं ना फ्रॉड का, जो थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह 83, 88 का लगता है किसी ऑफिसर के अगेंस्ट, तो वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, या उसका कुछ आपको डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दो सेक्शंस आपको नहीं होना चाहिए, 154 B8 एंड B27. B27 मींस सीओ मोटो रजिस्ट्रार भी आपको ऑर्डर पास कर सकता है फॉर नॉट बाय फॉलोइंग और taking care of the orders or the directions issued by the DDR or deputy registrar. तो अगर वैसे कुछ आपका ऑर्डर उसने पास किया है आपके अगेंस्ट, so that person also will not be able to contest the election. And then point number 4 says if he has incurred any disqualification under this act or the rules made thereunder, that means ये तीन तो है ही, और एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई करता है 146 या सेक्शन 146 या 147 के अंडर आप कहीं आते हो ऑफेंसेस में, तो देन दैट पर्सन आल्सो वोंट बी एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन. एंड देन a member clause आप देखिए, a member who has incurred any disqualifications shall cease to be a member. That means आज आप कमेटी में आए और इसके बाद में लेट्स से 6 महीने के बाद में आपने कुछ ये जो 3 या 4 पॉइंट्स है जो डिस्क्वालीफाई करते हैं आपको कमेटी में रहने के लिए, तो ये 3 या 4 पॉइंट में से कोई पॉइंट अगर आपका तभी एप्लीकेबल हो जाता है आफ्टर यू कम इनटू द कमिटी, then it says that if a member who has incurred any disqualification under section 1 shall cease to be a member, so that means you will be cease to be a member and his seat shall thereupon be deemed to be vacant. That means वो automatically आपको आपका सीट वो खाली हो जाएगा. That is what it says, right? And then further it says subclause 3 of 154 B23 it says a member जिसका सीट इस तरह से खाली हुआ है, that means आप डिस्क्वालीफाई आज आप चुन के आए, आप 6 महीना या 1 साल के बाद, आपका टर्म तो 5 साल का था, लेकिन 6 महीना 1 साल के बाद मे बी आप पे कुछ 79 का इंक्वायरी हुआ, 88 का इंक्वायरी हुआ, या 154 B27 का कुछ ऑर्डर आपके अगेंस्ट रजिस्ट्रार ने पास किया किसी मेंबर के अगेंस्ट, किसी कमिटी जो आपका कमिटी है उसके वो कमिटी मेंबर के किसी एक मेंबर के अगेंस्ट सपोज किसी का ये ऑर्डर पास हुआ, तो दैट मेंबर वुड बी डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ कमिटी मेंबर, राइट. And that is what it says, and then he won't be able to contest or recontest or re-co-opted for next 5 years.
So proviso, ये third number का point क्या बोल रहा है 154B 23 third, a member of a committee, a member of a committee cease to be a member thereof on account of having incurred disqualification under clause 2, 3, 4 or 5 of subsection 1 shall not be eligible to be re-elected, re-co-opted or re-nominated as a member of committee for 5 years from the date on which he or she has so ceased to be a member. That means next 5 साल के लिए आपका काम तमाम हो गया, आप वापस इसको इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला है, अ मेंबर ऑफ कमिटी हु हैज सीज्ड टू बी अ मेंबर thereof on account of having incurred disqualification shall unless otherwise specifically provided in this act be eligible. अगर सपोज उसके ये डिस्क्वालिफिकेशंस निकल गए, उसने पैसा भर दिया, तो फिर then he can be re-elected or re-co-opted or re-nominated. That is what it is, right? उसके बाद में ये मैनेजमेंट हाउसिंग कमिटीज, दिस इज बेसिकली मोटा मोटी यहाँ पॉइंट्स है कि कैजुअल वैकेंसी है, 2/3 कैसे काउंट होना है, जो रिजर्व कैटेगरी है उसको आपको माइनस कर, ये कुछ चेंजेस हैं और बाकी तो सारा ही अभी नया रूल आएगा उसकी ये सारा आपका डिपेंडेंट राइट। कैजुअल वैकेंसी भी एक्चुअली देयर इज वन सर्कुलर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी of I think 2017 or 2018. So it says 2.5 years अगर आपका टेनर खत्म होता है, I mean किसी हाउसिंग सोसाइटी का या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2.5 साल से ज्यादा टर्म खत्म हुआ है, so then they can go for the co-option or this casual vacancies can be filled up by them. और एक्चुअली ये रूल्स में ही था, इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 अगर आप देखोगे तो उसका 74 रूल नंबर 74 है, इसमें ये पहले ही बोला है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक्चुअली ऐसे बोला है जो हमारे एक्ट में एज इट इज नहीं आया था। सो उसका भी उस इलेक्शन टू कमिटी रूल्स का ही नया आई मीन ड्राफ्ट उन्होंने वापस थोड़ा सा वो अमेंडमेंट रूल 74 में अमेंडमेंट करके वो पब्लिश किया था फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड ऑब्जेक्शन, तो उसका भी अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। सो इट्स एवरीथिंग इज पेंडिंग एट द मिनिस्ट्री लेवल एज ऑफ नाउ. All the rules like Maharashtra Cooperative Societies rule, election rules, and even Rule 74 का जो amendment किया था, those rules are also pending as of date. So this was the amendment. Yeah, so this totally you can say about the election, whatever postment हमारे जो rules या ये है. So I think if you want, I'll stop sharing the. हाँ. So अभी किसी को कुछ questions पूछने हैं? Let me see the chat. Chat में क्या आया है? काफी सारे chats हैं. Then we'll take. Yeah, a member having 3 children is also disqualified from contesting the elections. Yes. फिर वो भी है कि 1 साल का, जैसे अभी हम लोगों ने फ्लैट लिया है और 1 साल जब तक कंप्लीट नहीं होता है, you can't contest the election, so that is not applicable to housing society. Okay, you can contest the election unless and until you are not otherwise disqualified. Chat, let me see the chat and then आप जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फर्स्ट लेट मी सी चैट में कुछ है क्या. अच्छा, किसी ने पूछा है whether recommendation for associate member to be approved by committee. No, it is a written authorization recommendation to be given by the ordinary member जिसका शेयर सर्टिफिकेट में पहला नाम है. तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, मैंने बताया सर कि एक्चुअली रूल्स इसके नहीं आए हैं. सुमित जी, रूल्स इसके नहीं आए हैं तो आज के डेट में हम लोग बता नहीं पाएंगे कि क्या फॉर्मेट होगा. बट ये रिटन रिकमेंडेशन पे वो बंदा कोई भी एसोसिएट मेंबर बन सकता है और इसको मेंबरशिप मींस एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भरना है, एंट्रेंस फीस देना है. या एसोसिएट मेंबर इज एलिजिबल फॉर मैनेजिंग कमिटी, मैंने बताया मैनेजिंग कमिटी में वो आ सकता है. अपने हमारा एक्ट 154B11 बोल रहा है कि एसोसिएट मेंबर कैन वोट एंड कैन कंटेस्ट द इलेक्शन आल्सो प्रोवाइडेड ऑर्डिनरी मेंबर जो है जिसका शेयर सर्टिफिकेट पे फर्स्ट नाम है वो उसको कंटेस्ट नहीं करेगा. तो एनओसी है तो दूसरा मेंबर कर सकता है. If a member is part of dispute filed in cooperative court against society, can such member contest election? That member can contest election provided he is not convicted by the cooperative court. तो सिर्फ आपका litigation going on है, अभी तक उसका कुछ rule या कुछ order नहीं निकला है तो he can conduct. या अच्छा, अभी इसमें जिसको जिसको question पूछना है
वो अपना हाथ रेज करें एंड मैं उनको अनम्यूट करूंगी, आप क्वेश्चन पूछो, और मैं मधुकर बी सर हैं यहाँ, उनको भी अनम्यूट करती हूँ। और बाद में whether there is any limit of disqualification of 15 years, where in Act rule it is mentioned that 3 notices are to be given to defaulter. It is mentioned it MCS Act में, आप गूगल आउट करो, सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा। एक मिनट, हाँ, अभी मैं पार्टिसिपेंट्स किसको क्या क्या पूछना है देखती हूँ। गौरी, मधुकर साहब कुठे गेले? मधुकर जी अनम्यूट, आपको खुद को अनम्यूट करो। Yeah, I've done it. सर मैंने ठीक से बताया? Everything was fine. I have a small doubt. Can I ask you? Yeah, please sir, please. Can you explain whether the two-child norm disqualification is applicable now after the amendment or not? Yeah, actually if you see, अभी हम लोगों ने जो 154B23 देखा है, वहां ये क्लॉज नहीं है, राइट? इट सेज 1 2 3 4 5, इतना ही डिस्क्वालिफिकेशन में लिखा है, राइट? Yes. So that is a gray area, because मैंने अभी किसी को आंसर दिया कि that is still valid. So मेरे हिसाब से that is still valid. We'll sort a clarification on that. We'll sort a clarification on that, because that is a gray area. Because हम लोगों ने जो 154B23 में किया है ना, तो उसमें 1 2 3 4 में यही बोला है कि first he should not be defaulter, second he should not be like convicted, और state agent नहीं होना चाहिए, but कहीं भी वो 2 members वाला, जो 2 child वाला जो है ना, वो नहीं है। या फिर हमको अमेंडेड क्लॉज हमारे जो है 154B का, कि मुटाटिस मुटांडिस हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एंड व्हाट इज दैट वी हैव अमेंडेड। सो उसमें अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो क्लॉज हम लोगों ने एज इट इज कंटिन्यू किया है क्या, या बट इट नीड्स अ क्लैरिफिकेशन। Fine. Thank you. या एक मिनट, गौरी गौरी या गौरी प्रश्न विचारा। थँक्यू शिल्पा मॅम. माझा क्वेश्चन असा आहे की मेरे सोसाइटी 500 मेंबर की सोसाइटी है और हमारे सोसाइटी के इलेक्शंस 6 महीने पहले हुए हैं, दिसंबर 2019 में, और कमेटी अच्छे से फॉर्म हुई है। रिसेंटली कमेटी में से 2 रेजिग्नेशंस हुए हैं और हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी ने एक कैजुअल मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में ही अनाउंस किया कि 2 रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, इसलिए हमने ये 2 मेंबर्स को कोऑप्ट किया है। पर हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर इलेक्शंस होने के बाद 2.5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो हम कोऑप्शन नहीं कर सकते इफ द सोसाइटी स्ट्रेंथ इज 500 मेंबर्स और हमारे इलेक्शंस को 2.5 इयर्स नहीं हुए हैं। तो क्या मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर 2.5 साल से कम पीरियड भी हुआ है, मतलब 6 महीने इलेक्शंस के लिए हुए हैं और वैकेंसी आ गई है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, कैन वी कोऑप्ट? आपके इलेक्शंस कब हुए आपने बताया? दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में इलेक्शंस हो ही नहीं पाए थे। नहीं हुए हैं मैम, मैं खुद एक कमिटी मेंबर हूँ। That election itself is not a valid election, because since October हमारा इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार का 6 महीने का रूल था। हमारी पिछली कमेटी 6-7 महीने पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई थी या रिजाइन किया था, तो रजिस्ट्रार आके बैठे थे 6 महीने के लिए और रजिस्ट्रार ने ही अनाउंस किया था कि 8 दिसंबर 2019 को रजिस्ट्रार के थ्रू, स्टेट इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी के थ्रू ही इलेक्शंस हुए थे। अच्छा, तो इंटरव्यू जो अपना नोटिफिकेशन आया और जो दिसंबर 2009, बट आई डाउट बिकॉज दिसंबर 2019 तक तो इलेक्शंस वर ऑन होल्ड एंड देन इन बिटवीन कुछ 4 दिन का पीरियड फ्रेश नोटिफिकेशन आया था। उनके थ्रू ही इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शन, क्योंकि हम 500 मेंबर का सोसाइटी है ना, तो उनके थ्रू ही इलेक्शंस हुए थे हमारे, है ना। तो अभी इसमें देखो वो जो कैजुअल वैकेंसी वाला आपका जो है ना, वो 2.5 साल वाला, वो आपको दैट विल कम इनटू पिक्चर अगेन। एज आई सेड, इट्स रियली अ ग्रे एरिया, सो एनीथिंग टू बी रिस्पोंडेड और आंसर्ड हियर इज डिफिकल्ट बिकॉज रूल्स नहीं है। सो कैजुअल वैकेंसी वाला जो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का 2018 वाला जो सर्कुलर है 2.5 साल वाला, वो भी आज के में एप्लीकेबल है नहीं है, बिकॉज रूल 74 का भी अमेंडमेंट किया है जिसका नोटिफिकेशन भी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एज फार एज माय नॉलेज गोस, इफ यू आर मोर देन 250 मेंबर्स, 500 मेंबर का, तो 2.5 साल वाला आपको एप्लीकेबल होगा। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि हमने रजिस्ट्रार को जब कांटेक्ट किया था तो उन्होंने भी हमको सेम इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2.5 साल के पहले हम कोऑप नहीं कर सकते। I got it. So you can write a letter to State Cooperative Election Authority in Pune
right? Okay. And mark a copy. आप registrar में letter मत लिखो, because for you state cooperative election authority would be the authority for conducting the elections as of now, right? And they're still the authority. So you write a letter to state cooperative election authority seeking a clarification and sending a CC to registrar. ओके, पर आपके हिसाब से 2.5 साल का रूल एप्लीकेबल है ना हमारे लिए? हाँ हाँ. ओके ओके, थैंक यू. Thanks. Yeah, सुंदर जी क्वेश्चन पूछिए. सुंदर जी क्वेश्चन पूछिए. प्रोफेसर नाहिद. प्रोफेसर नाहिद. Hello. Yeah. Good afternoon, madam. Yeah, good afternoon, sir. Acha, you see, I have got a society of 278 members. Okay. About 2 years back, the managing committee, entire managing committee resigned. Okay. And in that AGM, there were 3 members of the society who were appointed as a caretaker committee. Board of which is called as a designated committee. And after that, we have been writing to the registrar to hold the elections, but no elections have been held till so far. And we have been presenting all the annual accounts and doing all audit and everything pertaining to managing committee. So is it valid, and what is the outcome of this? Continue as long as no elections are being held, and now again for next 3 months there won't be any elections, so you will have to continue for further 3 months. But as I said, since you are a caretaker or maybe board of administrator or maybe that designated 3 members committee, you derive all the powers and all the obligations of a regular managing committee. So you have to take care of all the routine activities, including audit and accounts. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Yeah, Ramamurthy sir, ask your question. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो आपका माइक, या आपका माइक तो अनम्यूट है सर. हाँ बोलिए. This is Sundar here. हाँ अभी आ रहा है. I had a question about the tenure of the MC, which has not completed 5 years. How can the MC, such an MC be changed after say 3 years if the members are not happy? What is the process for that? What is the reason why it is not completed? Whether it is entire committee has resigned or something? No, the members are not satisfied. Some of the members at least are not satisfied with the way the MC is functioning, because they are not following the proper rules of communication. If the members are not satisfied, they can pass a no confidence motion or something, and then that needs to be reported to registrar, and then he will appoint an authorized officer who will be conducting the fresh elections. And since because of yesterday's GR, next 3 months there is not going to be any elections. So this is a process you will have to follow until someone else some authorized officer is appointed in your society. Anyway, you will have to continue as a committee. Even though but since now the election is in the hands of the members, so can a resolution by the general body be done, or you still have to involve the registrar? मैंने बताया कि इंटरनल इलेक्शंस कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ऐसे बोला है कि इंटरनली 250 मेंबर के नीचे वाली सोसाइटीज इलेक्शन कर सकती हैं एज पर रूल्स. तो रूल्स ही नहीं है हमारे पास, और इसी पोस्टपोनमेंट हो रहा है. तो आपको एज इट इज कंटिन्यू करना पड़ेगा. यू राइट अ लेटर टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड देन ही विल अपॉइंट ऑथराइज्ड ऑफिसर आल्सो ऑन योर कमिटी, जो बाद में आपकी इलेक्शंस कंडक्ट करेगा. ठीक है. ओके, थैंक यू. और जो जिन्होंने हाथ रेज किया था ना, वो लोअर हैंड करके वो हाथ अपने नीचे करो, गौरी आणि राममूर्ति, सो दैट कंफ्यूज हो रहा है अदरवाइज. हेमंत मिर्जी सर. Hemant Mirji sir. Yes, I have unmuted myself. The question pertains to co-option, madam. We still have, with societies, I'm taking the question further to what Gauri madam had asked. For societies less than 250, the co-option
still remains valid or not? सर ह्याच्यामध्ये ना मी तुम्हाला तेच सांगितलं की ये बहुत डाइसी है टू give any opinion if you ask, because there is a different opinion of the departmental authorities, because we keep on interacting with the authorities. I personally feel, this is my personal opinion, कि 250 and less than 250 member societies, since state cooperative election authority is not in picture now, right? Internally we can conduct the elections, and that casual vacancy circular of 2017 and 18 was issued by state cooperative election authority, and now as per the MCS Act 154B19 it says casual vacancy can be filled up. 154B19 forces, so managing committee internally can fill up irrespective whether your 2.5 साल is completed or not. Now गौरी मैडम के केस में 500 मेंबर थे, सो वो थोड़ा सा उसमें चक्कर है, 250 के नीचे है या 500 के ऊपर है. मधुकर जी is also there. So my conversation with SCA Pune verbally said that since that statement was issued by us for 250 less members, and with the new amendments, we do not the rules do not stand valid now. व्हॅलिड नव्हते, तसंच देतात ते, तसंच सांगतात. करेक्ट आमच्याकडे येऊच नका, कारण त्यांना राग आलेला आहे की वो कंडिशन निकाल दिया आपने, हमारा वो 250 मेंबर्स का कंट्रोल निकाल दिया है. सो यू गो टू state cooperative election authority, they say 250 and less than 250 don't approach us, right? Correct. I feel that circular becomes redundant for 250 and less than 250 members. But if it's more than 250, still the elections are happening through state cooperative election authority. For maybe for those societies that will hold good, but we need a clarification on that. That is also true, because so this clarity will come once the rules are notified, right? So let rules come. This clarification is awaited. Yeah, we are making it a point that will be there in the rules, है ना? ये थोड़ा सा gray area रहेगा. So agree with you. One more question. Can I? एक मिनट. Yes, sir. One more question. The empanelment of members who can conduct the elections, are these already defined? All these empanelment members that is again we have put up the clauses in the rules only. Who is going to be the election officer? Who is going to be the eligible member to be there on the election officers panel? So even your internal member of your society can also, though the person who doesn't want to contest the election, ये पहला 1991 का bylaw देखो, उसमें भी था internally society कैसे कर सकती है. So same is again going to be reproduced. That is what the line of action now. Yeah, but or we can invite the secretary chairman of some neighboring society, something like that. वो क्लैरिटी ये रूल्स में आ रहा है. सो वी नो वी कैन नॉट, आई मीन अभी हम लोग वो नहीं बता सकते बिकॉज़ इट इज येट टू बी पब्लिश. सो लेट इट गेट ऑफिशियली. Thanks. या योगेश जी. Good evening, madam. Two questions. The same question I'll continue regarding that three, whether the member having 3 children is disqualified from the managing committee elections. सर एक्चुअली मैंने वही बताया कि अगर मैं 154B23 कैटेगरिकली अगर देखूं तो उसमें 3 या 4 या 5, 1 2 3 4 जितना बोला है डिस्क्वालिफिकेशन, तो उतना डिस्क्वालिफिकेशन मेरा आइडियली आएगा. बराबर है? तो 3 मेंबर्स वाला कंसेप्ट उसमें नहीं स्पेसिफिकली बोला गया है. But it specify you should not be disqualified by the other provisions also, ना? मैंने बोला कि देयर इज 1 2 3 4 एंड एनी अदर. तो मैंने जवाब देते वक्त मैंने वही बोला कि क्लैरिटी भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो वैलिड रहेगा. Because there are judgments of ward B or C, I suppose, in Mumbai, where their managing committee member has been disqualified on these grounds. हाँ, तो ये क्लैरिटी सर रूल्स जब आएगा ना उसमें आएगा, तो अभी इस पे ना बोलना ही थोड़ा बेटर रहेगा. बट ये ग्रे एरिया है, दिस नीड्स क्लैरिफिकेशन. बट वन मोर क्वेश्चन. या 154B23 में रेसिडुअल क्लॉज भी है कि एनी अदर एक्ट के सेक्शन के अंडर भी अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप नहीं कर सकते हैं. सो दिस 3 मेंबर्स वाला अगर एनी अदर सेक्शन में आता है रिलेटेड टू 73 CP में आता है, तो then in my opinion still that member also will be disqualified. But yes, I will note it down. We'll get it. One more question. Yeah, this festival expenses regarding this,
the society is saying that you don't collect this separately and including the maintenance, ma'am. Nothing to do with election. But okay, festival expenses में मेरा खुद का opinion ऐसा है. This is my personal opinion. That because जब ये 2018 नवंबर में ये आया न्यूज़पेपर में, ये थाना फेडरेशन ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था, फिर वो न्यूज़पेपर में आया, and then that news got viral on the WhatsApp, and next day I released my clarification through WhatsApp saying that in my opinion, if you see bylaw 65 to 68, right? Yeah. And if you see the object clause 5 of your bylaw, कि हम लोग हाउसिंग सोसाइटी बनाते किस लिए है, तो उसमें 5 या 6 नंबर का आप क्लॉज देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स, कल्चरल या ये एक्टिविटीज भी हम लोग कर सकते हैं, राइट? फिर 65-68 जो है कि हम लोग सर्विस चार्जेस किस टाइप के ले सकते हैं, तो उसमें एक रेसिडुअल क्लॉज है एनी अदर, राइट? एंड इवन हमारा जो अभी अमेंडेड एक्ट मैंने जो अभी आपको पीडीएफ बताया, इसमें भी फंड्स क्या रेज कर सकते हैं, उसका 154B15 है शायद, तो वो बोलता है कि any fund can be created or any other as approved by the general body. So if general body approves, right? तो फेस्टिवल एक्सपेंसेस, फेस्टिवल इनकम जैसे आप कंट्रीब्यूशन चार्जेस ले सकते हैं. मेरी खुद की सोसाइटी हम लोग अलग हेड्स कल्चरल चार्जेस करके लेते हैं हर महीना, और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनता है तो एक प्रॉपर क्रेडिट साइड में इनकम दिखता है, उसके सामने एक्सपेंस दिखता है, तो मेंबर्स को वो भी समझ में आता है कि कलेक्शन 2.5 लाख का है, खर्चा 2 लाख का हुआ है, तो 50,000 अभी भी इसका बाकी है, राइट? So in my opinion, festival expenses can be collected, should not be a problem because it is nowhere specifically restricted. This is my version. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Sumit ji, question पूछिए. Hand raise करें जो भी. सुमित शाह, question पूछिए. Unmute करो अपने आप को. मैंने किया है आपको unmute. Mr. Sumit. Okay, so I think ma'am. Sharad Deliwala sir, CA Sharad Deliwala sir, namaste. Yeah, anybody else wants to ask anything? Sumit ji, आपको question पूछना है कुछ? Mr. Sumit. Yeah. He's not getting unmuted. हाँ, नहीं मैंने आपको, हाँ बोलिए. Yeah. Sorry, I missed your reply because of network issues. मेरा क्वेश्चन वही था, बिलो 250 मेंबर सोसाइटी में इवन और मेंबर्स एग्री होते हैं तो भी इलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं सर, आज के डेट में कोई इलेक्शन नहीं होगा, हमारे रूल्स ही नहीं है. मैं आपको वापस सबको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बार सब हमको व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि हमारा छोटा सोसाइटी है, अभी ये जो नया एक्ट आया, अमेंडमेंट आया, उसमें इलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर देखते हैं ना आप लोग, न्यूज़पेपर में कटिंग आता है, तो वो मुझे बहुत इरिटेट होता है कि ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते ही है, ऐसे नहीं है. सो वी शुड नॉट बी गोइंग बाय दी न्यूज़पेपर रूल्स या न्यूज़पेपर के आर्टिकल. तो मैंने जो अभी आपको पीडीएफ बताया, ये पीडीएफ में स्पेसिफिकली वो क्लॉज में लिखा है कि 73 सीबी में ये 11 नंबर का पॉइंट हम लोग अमेंड किया है. अमेंडमेंट ये है कि इलेक्शन 250 और लेस देन 250 मेंबर वाली सोसाइटी इंटरनली कर सकती है एज प्रिस्क्राइब्ड. और एज प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब शब्द का अर्थ है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, और अभी हमारे एक्ट के ये रूल्स नोटिफाई नहीं हुआ है, और इसीलिए मैंने आपको वो लीगल फ्रेमवर्क पहले समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट है, रूल है. फिर किसी ने बोला आप ये ज्यादा बड़बड़ मत करो, डायरेक्ट इलेक्शन पे आओ. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस रूल्स, दैट wording of meaning of that word prescribed. So आज के डेट में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी 250 और मोर देन 250 इलेक्शन कर नहीं सकती, क्योंकि कल का GR है, it says all elections for all the societies. The wording is for all the societies. So that means 250, more than 250, बैंक, पता संस्था, सबके इलेक्शंस नेक्स्ट 3 months के लिए होल्ड पे है, तो आपकी सोसाइटी भी नहीं कर सकती है. So let's wait for the इलेक्शन रूल्स ऑल्सो. या जब इलेक्शन के रूल्स आएंगे उसके बाद में उसमें सब वो प्रोसीजर आएगा कि इलेक्शन कौन करेगा, ऑफिसर कौन होगा, सोसाइटी का मेंबर होगा क्या, कौन सा फॉर्म देना है, बैलेट से होगा या कैसे होगा, वो सारा उसमें आएगा प्रोसीजर. तो हम लोग प्रोसीजर का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो तब तक एग्जिस्टिंग कमेटी कंटिन्यू करेगी. ओके या मिस्टर सुनील?
या हेलो मैडम, हमारा प्रोविजनल कमेटी है जिनका टेन्योर जो है कोविड के पहले ही, जो लॉकडाउन के पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन हाँ, और 250 मेंबर से अबाउ है हमारा सोसाइटी, और लेकिन हाँ, इलेक्शन हुआ नहीं था, कोई इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया नहीं, जबकि वहां पे इंफॉर्मेशन दे दिया था रजिस्ट्रार को एंड SCA को, हाँ, बट हुआ नहीं। और बाद में लॉकडाउन हो गया, हाँ। लॉकडाउन होने के बाद में सभी सोसाइटी के लिए ये पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन, लेकिन अभी हमारा सोसाइटी में कमेटी का टेन्योर पहले ही खत्म हो चुका है। नहीं, अभी कल का GR है सर, कल ही GR आया हुआ है, क्योंकि जो मार्च में फरवरी में जो GR आया, बिकॉज इलेक्शंस ना ये अक्टूबर में पोस्टपोन हुए, फिर दिसंबर में पोस्टपोन, दिसंबर तक पोस्टपोन किए, फिर फरवरी तक किए, फिर मार्च तक किए, फिर मार्च में आया कि अभी लॉकडाउन है, तो अभी 17 जून तक कोई भी सोसाइटी के इलेक्शन नहीं होंगे। तो कल 17 जून था, तो कल का वापस एक GR है कि अभी और 3 महीने के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। तो आपके सोसाइटी में अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो एज अ प्रोविजनल कमेटी यू विल हैव टू कंटिन्यू फॉर अनदर 3 मंथ्स, ठीक है? हाँ, लेकिन जो पहले वाले जो पोस्टपोनमेंट थे वो लेस देन 250 वालों के लिए थे ना, या नहीं, सभी सोसाइटी के लिए थे? नहीं, फॉर ऑल द सोसाइटीज इट गॉट पोस्टपोन। अभी है पहले भी कि जो डिपार्टमेंट कोई अभी नहीं, काम, कोविड के पहले, कोविड लॉकडाउन के पहले जो पोस्टपोनमेंट हुए थे वो सिर्फ लेस देन 250 के लिए हुए थे या सभी सोसाइटी के लिए हुए थे? उसके बाद में मैंने, आपने ठीक से मेरा सेशन सुना नहीं, डेप्यूटी CM का अपना एक वीडियो आपने शायद देखा होगा, डेप्यूटी CM अजित पवार सर का एक वीडियो था कि टिल फर्दर नोटिस, क्यों जब लॉकडाउन आया तो टिल फर्दर नोटिस ऑल द इलेक्शंस आर वी आर पोस्टपोनिंग, द ओनली थिंग इज देयर वाज नो सपोर्टिंग GR टू दैट, ठीक है? इसीलिए इट वाज एप्लीकेबल इवन टू दैट सोसाइटी। और अभी वो पीरियड खत्म हो गया है ना, अभी उसके बारे में बात करके फायदा ही नहीं है। अभी कल का जो GR है वो स्पेसिफिकली बोलता है ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, सो आपका 250 भी आ गया, मोर देन 250 भी आ गया, और अदर देन हाउसिंग भी आ गया, सो यू विल हैव टू वेट, राइट, एंड यू हैव टू कंटिन्यू एज अ कमिटी। ओके, ठीक थैंक है? यू। या राइट सर। या विल टेक या M कौन है? M last question I will take. Mr. M, unmute yourself. Who has joined as Mr. M? Mr. M, अच्छा, I think we need to close this session then. Okay. हेलो या Mr. M, क्या नाम है सर आपका? M आपने ज्वाइन किया है? शिल्पा जी, गुड इवनिंग, माय नेम इज मयूर दोशी. हाँ, गुड इवनिंग सर. I had already raised the question. I had emailed you my question, but it seems it was. हम लोग पागल हो जाते हैं, कितने ईमेल्स और कितने ईमेल आईडीज दिन में. No issues, ma'am. No issues. My question is. हम वाले ईमेल्स देखते हैं कि कहाँ कुछ मिलने वाला है क्या, तो फिर रिस्पॉन्ड करो, ऐसे अभी दिमाग में लिया है. बोलो. ना मुझे आपका registration confirmation में आया था कि you can raise your questions by email. That's why I did it that way. Not an issue. हाँ, उसमें थोड़ा सा addendum ये है कि if it is a general, will revert. If it is specific, it may be on a commercial basis. Anyway, you can ask the question now. Not an issue. So my question was very specific. 154B, 154B का clarification are there, ma'am. But the point is the secretary a member who was also a secretary, he sold his flat. So can there be a co-option for a secretary also? सेक्रेटरी सोल्ड हिज फ्लैट मींस उसका फ्लैट ही नहीं है, तो फिर वो सेक्रेटरी कैसे रहेगा वहां? नहीं, ऐसा है कि उन्होंने मार्च महीने में ही फ्लैट बेचा है अभी. हाँ. और उसके पहले वो सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मार्च में जब फ्लैट बेचा है तो अपना रेजिग्नेशन भी दिया है. तो अभी तक उन्होंने, द कमिटी हैज नॉट एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन एज अ मेंबर as well as a secretary for one simple reason: there are some outstandings. नहीं, अभी वो भी देखो कि आपको जब ट्रांसफर करना है तो आपको NOC देना है, तो आपको आउटस्टैंडिंग सबसे पहले क्लियर करना है. ये अमेंडेड एक्ट में वो भी लिखा है. अगर कोई फ्लैट ही बेच देता है और रहता ही नहीं है, लेट्स से ही डजंट हैव एनी अदर फ्लैट इन दैट सोसाइटी,
with the same name, so he is not eligible to, he is not a member only. You will have to transfer, or you will have to transfer, no? No, transfer is not an issue, madam. What I am asking is, can the committee co-opt someone as a secretary, some other member as a? Yeah, internally you can co-opt, but handover takeover भी उसको proper करना है. See, bylaw 131 आपका बोलता है, 130 is for the general member, कि अगर कोई आपका resignation देता है और भले ही committee उसको accept करे ना करे, उसका 1 month में resignation deemed to be accepted है other committee member को. But if a office bearer resigns, so bylaw 131 is very specific, unless and until you give proper handover and it is being properly recorded in the MC meeting, he is not relieved from his duty. तो आप उसको करो और उसका properly resignation लेके committee में लेके handover takeover करके पूरा बाद में you co-opt internally. Okay, thank you very much. Yeah, that thank you. Thank you. I think we'll chat देखने. I'm giving my mobile number here. You people can note down my mobile number, but as far as possible, I would request you to please watch my YouTube videos. This is my mobile number and this is my YouTube channel. तो मेरे YouTube चैनल पे पार्किंग से लेके ऑडिट, AGM, आपका इनकम टैक्स, GST, ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, आपके जितने भी इश्यूज हैं कोऑपरेटिव्स रिलेटेड, वो सारे उस पे कवर्ड हैं. तो आपको वीडियो देखने के बाद में काफी क्लैरिटी आएगा. सहकार विश्व ये मेरा YouTube चैनल है और चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, so that you will get the update also. This is my YouTube channel and I'll give you my email ID. CHS Matter for CA Shilpa. ये इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन मेल करते वक्त एकदम प्रिसाइज, क्योंकि कोई कोई मेंबर मुझे मेल कर रहे हैं ना तो पूरा निबंध लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे टाइप आप क्वेरी लिखोगे तो मेरा काफी टाइम उसमें जाता है. बी प्रिसाइज एंड एज फार एज पॉसिबल द क्वेरी शुड बी जेनरिक क्वेरीज. या तो ये मेरे ईमेल आईडीज हैं, इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, राइट. सो आई थैंक all the members for participating in this session. I hope, see it's a gray area as of now because rules नहीं है, तो काफी चीजें इसमें अभी तक clarity नहीं है. तो rules, we are waiting for the rules, we are waiting for the election rules also, we are waiting for the MCS rules also, and once the rules comes, hopefully all the elections also will happen, the things will get clarified. और आज के सेशन से मुझे जो 2-3 पॉइंटर, जैसे 3 मेंबर वाला चीज है या कैजुअल वैकेंसी वाला है या 2.5 years वाला जो है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं डिपार्टमेंट को खुद मेल डाल के या स्पीक टू द कंसर्न ऑफिशियल एंड गेट द क्लैरिफिकेशन आल्सो, राइट. एंड मेरा ब्लॉग भी है, तो ये क्लैरिफिकेशन मैं ब्लॉग्स पे भी डालती हूँ. तो मेरा ब्लॉग है CA शिल्पा शिंगारे रियल कोऑपरेटिव इन्फो ब्लॉग .blogspot. तो आप गूगल पे अगर सिर्फ CA शिल्पा शिंगारे यूट्यूब चैनल या CA शिल्पा शिंगारे सहकार विश्व या CA शिल्पा शिंगारे डालोगे ब्लॉग, तो वो आपको मेरे ब्लॉग के साइट पे लेके जाएगा और फिर आप मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं. तो ब्लॉग पे भी मैं काफी GRs, नोटिफिकेशंस, उसके सारे अपडेट्स मेरे आर्टिकल्स में डालती हूँ. आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप ब्लॉग पे भी डाल सकते हैं. और मेरा वेबसाइट है cashilpashingare.in. तो ये वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो रिसोर्स मटेरियल टैब है, तो रिसोर्स मटेरियल में हाउसिंग रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं. वहाँ क्वेरी टैब है, तो जैसे अभी आप मुझे चैट में क्वेरी पूछ रहे हो या पर्सनली क्वेरी पूछ रहे हो या मुझे ईमेल करते हो, तो वो साइट पे जाके वहाँ भी क्वेरी में जाके आप क्वेरी टाइप करोगे तो वो भी क्वेरी मुझे आता है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी. ठीक है.
ओनली हम्बल सबमिशन इज थोड़ा सा कंसिडरेट करो हमको भी, हमारा प्रोफेशनल भी असाइनमेंट्स होते हैं, घर का भी काम होता है, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे फोन और कॉल्स हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे. व्हाट्सएप मैसेज इंडिविजुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी बिकॉज आई एम रीजनल काउंसिल मेंबर. तो मेरा पूरा महाराष्ट्र और गुजरात गोवा का भी मेरे सीएस मेरे से टच में रहते हैं, उनके भी क्वेरीज होते हैं. तो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक टाइम में कॉल करो या एक मैसेज ड्रॉप करो, आई वांट टू स्पीक टू यू, सो मे बी आई विल कॉल बैक और आई विल गिव यू टाइम. So let's work it that way. Yeah. So thanks all for joining. Thanks all the chartered accountants, advocates, all the members, committee members. Yeah. And I'm going to conduct more and more webinars on this. So please stay tuned to the upcoming webinars. And chartered accountants, 22nd June, I have a webinar for chartered accountants. That is multi-state cooperative societies. It is exclusive webinar for the chartered accountants. So all the chartered accountants, I request everybody to please enroll for that session also, right? Thank you so much. Stay safe. Thanks. Thank you. Thanks all. Bye. Take care. Thanks, Sanjeev. Bye. Meher Bhivanti wala madam. Bye. One sec. मेहर मैडम थैंक यू. आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका माइक ऑन करो. हाँ किया. No, it was really good. Thank you very much. Yeah, thanks. My pleasure, ma'am. Yeah, God bless you. Bye. Take care. Bye.